Okay. A very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I'm audible to everyone. This is exclusively the detailed solution of June 2025 discussion, which we have said to all the students that we will be doing it well before the exam. So the day have arrived now onwards, we will be devoting at least 1 to 2 hours on daily basis, and in upcoming 6 to 7 hours, the discussion will be completed. Not more than that, because already we have discussed the questions unit wise, so it will be a smoother task this time, right? So this is a detailed solution of June 2025 paper 2, right? Which will be really productive and helpful activity to carry on in depth. And this is exclusively available to uh, only you people, right? So that you people can take advantage of it, right? So let's start with question number one, right, of the paper where we will be discussing all the questions, right? So let's start with the first question. चलिए. So guys, the first question is basically coming from the side of disaster management, sort of, but an easy question, and from sort of like we should say it can also correlate to the hazard, where like we have the natural hazard in the booklet in paper one, right? Oh, sorry, in your booklet one, it is the last topic, right? So the question says that which of the following key terms is not included, right? It was an easy question, and from the side of like natural hazard, I would say the question which came from. So the question number 51, it says that which of the following key terms is not included into the definition of disaster in Disaster Management Act 2005. So, guys, there is a specific definition of disaster that a disaster could be any calamity, catastrophe, or mishap which causes the damage to human life, their property, economy, and our environment. So, this is the definition which have been given in Disaster Management Act 2005, which we have wrote down underneath that, like you can say here that what is actually the definition of disaster as per the Disaster Management Act 2005. It says that Disaster Management Act 2005 defined disaster as a catastrophe, mishap, calamity, or grave occurrence in any area arising from the natural or man-made cause, because disaster can be either natural or man-made, right, or by accident or negligence. So the key term explicitly used in definition is catastrophe, mishap, calamity, and grave occurrence. So risk is nowhere, right? So risk is nowhere. So risk is the odd one out, right? But on the other hand, you should know what is risk, right? So risk is discussed in separately in disaster management literature and in a newer amendment draft as disaster risk, meaning the potential loss or damage that could occur, right? So risk is a probability. It is not the actual happening. However, it does not appear in the original 2005 legal definition of disaster, which uses only the four event terms above. So catastrophe, mishap, calamity, and grave occurrence were the word which were used in the initial definition of disaster in 2005 Disaster Management Act. So correct answer here is basically risk, because it have not been taken into the basic definition of disaster in Disaster Management Act 2005. Is this question clear to each and everyone? Question number 51. Quickly, guys.
Respond quickly so that we can discuss more and more question and utilize the appropriate time frame. Quickly, all the people who are there. Quickly, guys. All the people of the session, please respond. In case you have any doubt, you can ask either the voice-based question or the chat-based question, whatever you feel comfortable with. I hope the question number 51 is clear to each and everyone, as the multiple responses of the respondent are coming into the chat box. So let's move to the question number 52, which is the second question of June 2025. And the solution have already been handed over to all the people who can use it. This question I already discussed one day back when we were discussing the questions of energy, right? I will go with it again, and it is a repeated question. It came from the energy section, specifically from the coal, where coal lithotypes have been given, right? So as far as the question number 52 is concerned, let's have a look downneath what are the actual meaning of these and what are the quality of vitrane, durane, fusane, which are the lithotypes of the coal or the coal types. So let's talk them one by one without matching them. So first we have vitrane, which is one of the lithotype of the coal, and vitrane is a bright color glassy coal. It consists mainly of vitritine maceral group with small amount of exenite, less than 20%, and so it matches with vitritine mineral with less than 20% exenite mineral. So it was a repeated question, let me tell you. एक साल डेढ़ साल पहले भी ये क्वेश्चन आया है. Then canal coal is basically famous from Giladium and Gracilaria, where alginite is there, which is algin as the compound. So canal coal is a dull black and burns with bright flame, and it is rich in alginite, which is basically obtained from red and brown algae and other liptinite minerals. Therefore, they're dominated by alginite. So alginite is a compound which is a particular feature of canal coal. You should keep that in mind. Then we also have durane, which is also one of the lithotypes of coal, and durane is a dull and hard coal, and it composed mostly of intrinite and exenite mineral groups. So it belongs to mainly intrinite and exenite mineral groups, luckily. Then we have fusinite, right? Fusane goes with fusinite, which says fusone is also one of the lithotype of the coal, which is there. And fusane is soft, charcoal-like coal. It consists mainly of fusinite, a type of internetite mineral, and highly it goes mainly with the fusinite. So now it will become easy for us to match, and the hint was also there, like fusane we should match with fusinite first, which was this the most easiest hint. So fusane, which was there, which is basically fusinite. So D goes to 2, D goes to 2, then only 2 options are there. So this was an easy hint also. This has gone out and this has also gone out. A belongs to third, definitely in both of them. So vitrane is basically vitrinite mineral group, right? So it's a vitrinite mineral with less than 20% exenite mineral group. And then, then which is canal coal. Canal coal is basically dominated by alginite, as we told you that algae compound are there, right? And definitely durane, it belongs to the C belongs to the 1. So the ultimate answer for the question is third, which is the correct answer. और repeated question है, मैं आपको पहले बता दूं, पहले भी इन टाइप्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं 1.5 year बैक का क्वेश्चन है, हमारे यूट्यूब पे भी डिस्कस्ड है, और ऑलरेडी जो PYQ क्लाउड्स है उन पे भी डिस्कस ही आपको मिलेगा. सो दिस वाज द नटशेल ऑफ द स्टोरी. और कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया गाइस एनर्जी में. कोल को आप काफी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमने भी काफी डिटेल में उसकी कवरेज करी है कोल की फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, सो दैट 1 to 2 क्वेश्चंस कोल से एक्सपेक्टेड है इस बार भी, राइट? So I hope the question number 52 is clear to each and everyone. Anyone having any doubt till here? Quickly guys, जल्दी से बताएंगे. किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 52 में? The correct answer is 3. Yes, thank you very much for the response. Keep responding, because your response will be beneficial in speeding up this session, right? So let's move forward and talk about more questions.
Let's talk about question number 53, which is one of the important aspect, and it have directly come from municipal solid waste, which ma'am have covered very nicely. And this question was from the landfill, and already repeated question multiple times it have been asked and directly given into your booklet, right? It is there in booklet 2, where we have talked about waste, and booklet 4 as well, if I am not wrong. So simple logic, they are asking about the stages of landfill. And this question I have repeated at least multiple times in NTA. Let me tell you very frankly, बहुत बार ये question मैंने देखा है अलग अलग form में. Sometime they will ask initial phases में which are the gases which are obtained, final phases में which are the gases which are obtained. So all the things are basically there. So let's see the question, what it is asking. Question number 53, it says that arrange the following major stages of waste degradation in landfill starting from the first to the last. Means they are asking basically from the beginning to the end of the landfill कि starting में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है. So all the process you are well aware with, and you know that initially it is an aerobic degradation which happens, followed by hydrolysis and fermentation where few acids are produced. Then we generally see acetogenesis, and in the last we have methanogenesis, and then we have the oxidative phase. Generally not the oxidative phase exactly, but methanogenesis and the end of landfill, I would say, right? By default they have given some options as oxidation, but for me only 4 stages should be there. But let's discuss this question. हाँ, ये ऑक्सीडेशन गलत लिखा है, यही मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, राइट? ऑक्सीडेशन शुड नॉट बी देयर. ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसमें, बट लेट्स डिस्कस ऑल द स्टेजेस, राइट? तो सबसे पहले गाइज आपका होता है जो है एरोबिक डिग्रेडेशन. यही से क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाएगा कि बी सबसे फर्स्ट है, राइट? है ना? हाँ, that is a different choice, right? But let's first talk about the question details and then we will come to the conclusion कि क्यों हमने ऑक्सीडेशन को इग्नोरेंस पे दिया है. तो फर्स्ट स्टेज इज एरोबिक डिग्रेडेशन, इनिशियल फेज. जब आपकी लैंडफिल स्टार्ट होती है तो वहां पे एरोबिक डिग्रेडेशन होता है गाइस. तो बी जैसे ही आपको पता चला कि बी पहला स्टेज होने वाला है तो अदर 2 ऑप्शंस आर गॉन. ये भी तरीका होता है रूल आउट करने का जहां पे आप 100% श्योर हो. तो इट कुड बी ईदर 1 or 3. लेट्स सी. So aerobic degradation is the first phase. When waste is freshly deposited, there is some oxygen in the pore space and microorganisms use oxygen to oxidize the organic matter. तो आप एरोबिक डिग्रेडेशन बोल लीजिए या ऑक्सीडेशन बोल लीजिए, मेरे को लगता है ये एक ही स्टेप होने चाहिए थे, बट बाय डिफॉल्ट गलती से टीचर ने जल्दीबाजी में ऑप्शन गलत रख दिया है. एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है जिसको ड्रॉप किया गया क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने कुछ गलत रखा है. वो आई विल डिस्कस व्हेन द क्वेश्चन विल कम. Process: rapid microbial respiration, oxidation of carbohydrate, fats, protein, CO2, water, and heat. Condition: aerobic, relatively high temperature and rapid oxygen consumption. And this phase is short, days to weeks it will consume and end when the oxygen is depleted. जब ऑक्सीजन खत्म होगा तो ये फेज भी खत्म हो जाएगा. उसके बाद गाइज आता है एसिटोजेनिक फेज, या जिसको हम एसिडोजेनेसिस कहते हैं. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस और फर्मेंटेशन होता है. तो बी के बाद आपका डी ही आना था, तो ऐसे फर्स्ट ऑप्शन भी किल आउट हो गया आपका. ठीक है, ये भी गया. तो हाइड्रोलिसिस और आप इसको बोल सकते हैं. तो हाइड्रोलिसिस एंड फर्मेंटेशन इज द सेकंड स्टेप व्हिच वी कॉल एज एसिडोजेनिक फेज. और मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया लैंडफिल में, वेस्ट में ये है भी ऑल द स्टेजेस ऑफ लैंडफिल. एंड हेंस ऑक्सीजन इज गोन, द सिस्टम बिकम एनारोबिक. तो अब तो ऑक्सीजन है नहीं, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी. कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स सच एज सेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन. हाइड्रोलिसिस होगा इनका and into soluble monomers, sugar, amino acids, and fatty acids. And fermentative bacteria convert those monomers into the short chain volatile fatty acids, VFAs, alcohol, hydrogen, CO2, and organic acid. And this is often called acidogenesis. इसी process को हम acidogenesis कहते हैं, या acidic phase भी कहते हैं. Result क्या निकल के आएगा? Acidic environment हो जाएगा. pH will definitely drop down and high volatile fatty acids concentration. And this phase prepare सबस्ट्रेट्स फॉर एसिटोजेंस एंड मिथेनोजेंस. यहाँ पे हम एक प्रॉपर स्टेज तैयार कर देंगे जहां पे आपका एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया विल बी एबल टू वर्क आउट, राइट? और उसके बाद आपकी प्रॉपर जो है एसिटोजेनेसिस प्रोसेस होगी जहां पे
प्रॉपर एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, विच इज द सी फेज, which we say that acetogenesis, acetogenic phase, and acetogenic bacteria take the आपके जो volatile fatty acids हैं, alcohols and other fermentation products and convert them mainly into acetate, hydrogen and CO2. And this step is crucial because many methanogens use acetate, है ना, क्योंकि एसिटोक्लास्टिक मिथेनोजन होते हैं वो जो एसिटेट को यूज करते हैं, एंड हाइड्रोजन और CO2 हाइड्रोजीनोट्रॉफिक मिथेनोजेंस भी होते हैं टू फॉर्म द मीथेन। दो कैटेगरी में डिवाइड किया उनको। कंडीशंस, एनारोबिक पीएच यूजुअली बिगिन टू रिकवर एंड एसिड्स आर कंज्यूम। धीरे धीरे पीएच थोड़ी सी रिकवरी शो करेगी, बट कंडीशन अभी भी एनारोबिक है। और लास्ट स्टेज जो आपका आता है गाइस, विच इज स्टेज नंबर ई, विच इज बेसिकली मिथेनोजेनेसिस, विच आई सेड टू यू, राइट। तो लास्ट जो है मिथेनोजेनेसिक प्रोसेस है, जस्ट अ मिनट, राइट। तो लास्ट आपका जो है प्रोसेस जो है मिथेनोजेनेसिस है, मीथेन मिथेनोजेनिक फेज। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया या मिथेनोजेनिक आर्की, which is also a bacteria, convert the acetate into methane and CO2. Acetoclastic methanogenesis we call it as, so reduce CO2 with hydrogen to form methane. Hydrogenotrophic methanogenesis this process is called. And gas production, methane rich landfill gas typically composed of 40 to 60% methane and CO2 plus trace gases, and this phase is slower but can last for year decades, and it's the stage that produce एक्सप्लॉइटेबल लैंडफिल गैस। तो यहाँ पे हम काफी गैस की रिकवरी लैंडफिल से कर सकते हैं। दिस मार्क द स्टेज विच इज देयर। ऑक्सीडेशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, ये इन्होंने ऑप्शन में ही गलत रख दिया है, ठीक है ना। कुछ कुछ कमियां होती है, बट व्हेन द कैंडिडेट या एनीवन डू नॉट रेज देम, तो उसको एनटीए उठा के देखता भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, दे डू नॉट पुट एनीथिंग ऑन दिस, राइट। उसको उठा के देखता नहीं है। तो आपको ऑर्डर पूरा चेक करना है, ठीक है। अगर हमें पूरा चेक करना है तो एक ही ऑर्डर बैठता है इसमें, ठीक, विच इज थर्ड, ठीक है। एक को अगर मैं भूल ही जाऊं, क्योंकि मुझे पता है, देखिए हमने मेंशन लिख दिया है, इसीलिए व्हाई द सॉल्यूशन हैव एवरीथिंग एंड व्हाई इट शुड बी रीड, क्योंकि इट टेल यू which are the lacunas which the paper still have even after the final key is published, right। तो मेरे हिसाब से oxidation in the list is essentially the chemical or biological oxidation process that occur during the aerobic phase। वो initially part का part होता है, initial surface oxidation, anaerobic microbial respiration, because oxidation is a part of early aerobic process। तो ऑर्डर ये होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, फर्मेंटेशन, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस। तो ये जो एरोबिक डिग्रेडेशन है उसी को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने गलत दिया हुआ है। तो अमंग द प्रोवाइडेड मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वन हैव टू प्रिजर्व द करेक्ट बायोलॉजिकल, तो इट शुड बी बी डी सी ई, इट शुड बी बी डी सी ई। तो बी डी सी ई खाली एक ही ऑप्शन में है कि ये करेक्ट ऑर्डर में है, तो इस वजह से हमने उसको लिया है थर्ड ऑप्शन को। आप ये मत समझिएगा कि लास्ट में ए है इस वजह से लिया है, क्योंकि एक ही जगह है जहां पे बी डी सी ई एक साथ आ रहा है, तो इसलिए हमने उस ऑप्शन को कंसिडर किया है। और किसी भी ऑप्शन में, क्योंकि आपको पेपर में लिखा होता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन यही बैठेगा जहां पे चारों चीजें एक ऑर्डर में है। तो बी डी सी विच इज ऑप्शन नंबर 3। प्रैक्टिकल implication if we have to talk about of this process, managing oxygen ingress, moisture and compaction affect which stage dominate and how fast the gas is produced। पूरी लैंडफिल की हम लाइफ साइकिल को देख सकते हैं। अर्ली एरोबिक फेज रिड्यूस order and some organics but completely treat waste. Long term emission of methane come during the methanogenic stage. Landfill gas control and capture are targeted at the methanogenic stage to reduce the greenhouse emissions and recovery gases. So these are the applications that how we can use it. But as per the question, the correct answer is third, because only one option is there, right? Only one option is there where B, D, C, E are in sequence. A का कोई significance नहीं था, but because only one option was having these four in order, that's why the correct answer is third here. I hope it is clear to each and every one. In case anyone having any doubt, please feel free to ask that. Anyone having any doubt in question number 53? Quickly, guys. I hope it is making sense. A was not essential। A आपका ऑक्सीडेशन जो है वो एरोबिक डिग्रेडेशन ही होता है, तो कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज द टीचर नोबडी रिपोर्टेड इट,
So that's why NTA didn't modified it. सिंपल सा लॉजिक है कि सुनवाई उसी सवाल की होगी जो आप पॉइंट करेंगे, जो आप पॉइंट नहीं करेंगे आप अपनी तरफ से उसको करेक्ट मान लेंगे। ये एनटीए का फंडा है, सॉरी टू से बट इट इज देयर, राइट? ऐसा देखा गया है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ इट इज देयर वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू focus on our job, right, which is to reach the correct answer and with logic. Now let's move to the next question, which is question number 54, which is on EIA, environmental impact assessment. It has been very nicely covered by ma'am, right? So let's talk about question number 54, which is there, and it is directly from the बुकलेट और यू से सॉल्यूशन और असाइनमेंट। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और ये डायरेक्टली मैं कहूँ आपको, द सिमिलर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इनटू गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग वंस। तो ये शफल अप होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन, नॉट ऑल, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। वहां पे सारा का सारा एम्फेसिस टेक्निकलिटीज पे होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। So, which of the following judicial principle has often been involved by Indian court to uphold environmental clearance requirement under EIA? तो इनका पूछने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा जुडिशियल प्रिंसिपल है जिसको इंडियन कोर्ट्स इन्वॉल्व करते हैं कि आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना चाहिए या EIA की रिक्वायरमेंट है, विच इज द प्रिंसिपल। तो गाइज देखिए, प्रिंसिपल तो सीधा सा है कि कुछ डैमेज हो इन्वायरमेंट को उससे पहले आप जाग जाए, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। बट लेट्स सी दैट व्हाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, क्योंकि EIA किया इसलिए जाता है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन आवर एयर, वाटर एंड सॉइल एंड द लाइफ ऑफ द पीपल। ये चार चीजें मेनली हम इनकम्पास करते हैं, soil pollution, air pollution, water pollution. What is the impact on the life of the people or the social impacts and economic impacts, right? So definitely it is like precautionary principle. Before any damage is done, let's take some step back. तो पहले से हम प्रोविजन कर पाए इसलिए किया जाता है। So that's why we said that the correct answer is precautionary principle, but we have to know about each and every option. So let's have a look why precautionary principle is the correct answer for this question and why court are interested in that, right? पहले तो हम precautionary principle की बात करेंगे। तो Indian courts have repeatedly held that the system of environmental impact assessment and the requirement for prior environmental clearance are founded on the precautionary principle of environmental law. तो जैसे आप बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सेम प्रिंसिपल इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट, कि कोई डैमेज हो उससे पहले वी शुड बी डूइंग द रेमेडीज। This principle says that when an activity may cause serious or irreversible environmental harm, the authority must take preventive measures in advance. ये main crux है कि we should take measures in advance in order to revert those damages जो हमें दिख जाते हैं कि होने वाले हैं, even if full scientific certainty about the damage is not yet available. अब चाहे आप ये कहें कि 100% होगा कि नहीं होगा, बट अगर चांसेस भी है ना, then also we will take some preventive measure कि भैया इसको आप रोकें, ठीक है, कैसे इसको करेक्ट करें, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस थिंग। Then let's talk about more things. Using this logic, the court and the NGT, National Green Tribunal, have treated environmental clearance as a prospective preventive tool, not mere formality to be granted after a project has already started. तो इसीलिए पहले कराया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि बस खाली एक फॉर्मेलिटी करनी है, वैसा कुछ नहीं है, इसीलिए पहले कराया जाता है, वरना तो प्रोजेक्ट के बाद में कराया जाए, राइट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। struck down or criticize ex post facto retrospective clearance because they defeat the every purpose of precaution, and allowing such clearance is said to be contrary to the precautionary principle that is designed in EIA notification 2006, right? तो ये ध्यान रखना है आपको कि precautionary principle जो environment का है, that is involved. Then we had other words also here. The first one, which is caveat emptor. What is the mean of this, right? caveat emptor का क्या मीनिंग होता है और ये बाकी के ऑप्शंस क्यों रिलेवेंट नहीं है गाइस? तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट और कंज्यूमर लॉ प्रिंसिपल। ये जब भी आप कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट उसमें होता है,
जिसको आप कहते हैं ना कि प्लीज रीड द कैटलॉग एंड प्लीज रीड द कंडीशंस एंड वार्निंग्स. सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और कंज्यूमर लॉ प्रिंसिपल, मीनिंग लेट द बायर बी अवेयर, कि पहले से उसको आप बताएं कि भैया फ्रिज कितने लीटर का है, फ्रिज में क्या क्या प्लस है, क्या क्या माइनस है, ठीक है, एंड इज अनरिलेटेड टू द ईआई और एनवायरमेंटल क्लियरेंस. तो ये सिंपल सा लॉजिक है. जो कैवेट इम्पिटर है, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीद रहे हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी, राइट, कि पहले से आपको बताया जाएगा. जैसे लिखा होता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू द मार्केट अनसर्टेनिटीज, राइट, है ना. तो आपको पहले से वार्निंग दी जाती है. या फिर कोई भी और चीज है, जैसे लिखा होता है अल्कोहल के पैकेट पे कि भाई जो है द अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉन्सर, राइट, सेम विद द टोबैको ऑल्सो. तो बायर को अवेयर होना जरूरी है, ये कैवेट एम्पिटर बोलता है, एंड इज नॉट रिलेटेड टू द ईआईए. उसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है गाइस, आपका जो मेंशन है इमिनेंट डोमेन. इमिनेंट डोमेन कहने का मतलब क्या है गाइस? दिस रेफर्स टू द स्टेट्स पावर टू कंपल्सरी एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस. जैसे मेट्रो बन रही है और किसी का घर मेट्रो के बीच में पड़ गया, तो भैया इमिनेंट डोमेन ये कहती है कि स्टेट को ये राइट है दैट वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है विद सम कंपनसेशन. ठीक है ना. नॉट टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, राइट. तो ये जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है. ये कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट है जो आपका कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जो देहरादून एक्सप्रेसवे है, उसमें यहाँ दिल्ली से निकलते समय कुछ सेक्शन में कुछ ऐसी हर्डल्स आई थी कि किसी का कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, which was later on the things were get modified, that person reached to the court. तो स्टेट को ये राइट होता है कि किसी आपकी जो सोसाइटी के लिए ये बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है उसमें वो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपटेक कर सकता है या प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओवरटेक कर सकता है विद सम कंपनसेशन. जैसे आप देखते हैं कि जनरली जो हाईवेज बनते हैं, आप बोलते हैं ना कि हाईवे में आ गई हमारी जमीन या एयरपोर्ट में आ गई, तो दैट इज कॉल्ड इमिनेंट डोमेन. तो स्टेट्स पावर टू कंपल्सरली एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस. तो ऐसा हो सकता है कि आम जनता की भलाई के लिए हम उसको एक्वायर कर लें, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट डोमेन. एंड वन मोर वर्डिंग इज देयर व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. तो आपने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट पढ़ा होगा, पीआईएल 1991, जो क्वेश्चन में आता है बहुत बार. एक टर्म होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी गाइस. ये क्या होता है? दिस प्रिंसिपल एंड इट्स इंडियन वेरिएंट एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज मेनली, तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहिए चाहे एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहिए, इज मेनली यूज्ड इन पोल्यूशन और हैजार्डस सब्सटेंस डैमेज केसेस, स्पेशली फॉर कंपनसेशन. जब उनको आपको कंपनसेशन देना होता है, जैसे आपको पता है ना पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस 1991 में है कि पेड अप कैपिटल होनी चाहिए आपको, ठीक है, इतने मिनिमम, और कंपनसेशन होना चाहिए रादर देन टू जस्टिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस. तो ये उस केस में है कि कहीं पे भी अगर आपका पॉल्यूशन को कोई डैमेज हुआ है या इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में ये कंपलसरी कहा गया है कि यू हैव टू गिव द कंपनसेशन, राइट. तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वहां अप्लाई होती है, ये ईआईए क्लियरेंस में अप्लाई नहीं होती. So therefore, we conclude that the judicial principle often involve the Indian code to uphold environmental clearance. Precautionary principle is the correct answer. I hope I made some justified argument regarding the question and why we choose precautionary principle, because precautionary principle make sure that the preventive measures are taken well before the project is executed, whether it is a road, railway, mining, highway, kuch bhi ho. So precautionary principle is the correct answer for question number 54. I hope it is clear to each and everyone. Anyone having any doubt till here? Quickly guys. बताइए. किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग व्हिच यू फेस इज प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि हमारे लिए इनका जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस का और इनकी इन डेप्थ डाइजेशन आपके लिए बहुत मैंडेटरी है. व्हाट आई फील दिस विल डेफिनेटली एड अप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग एग्जाम फॉर दिसंबर. ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है और आप इसको देख भी सकते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स इनटू द एवरी टाइम्स एग्जाम आल्सो. तो आपको काफी क्वेश्चंस मिलते जुलते दिख सकते हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली वही होगा, बट मिलते जुलते दिख सकते हैं, विच वुड बी एन एडवांटेज. अगर ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन भी दिखते हैं तो दैट विल डेफिनेटली एड एडवांटेज, स्पेशली फॉर जनवरी एंड जून, राइट. Now let's move to the next question, which is question number 55, जो कि आपका आया है एनालिटिकल मेथड से. ये भी मैम ने कवर किया है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन और एनालिटिकल मेथड जो बुकलेट 1 का पार्ट है.
But now let's talk about the all these statements and everything which have been given in question number 55 कि एक्चुअली में होते क्या है, राइट? तो हम पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं डिटेलिंग के साथ. Question number 55 says, consider the following statement about analysis and analytical instrument and data quality. देखो तीन चीजें मेंशन हुई है यहाँ पे और ये कंबाइन क्वेश्चन है. एक वर्ड मेंशन हुआ है अबाउट एनालिसिस. फर्स्ट वर्ड या मैं कह सकता हूं कि एनालिसिस, राइट. दूसरा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप चलाते हैं, चाहे जीसी है, चाहे डबल एएस है, राइट, राइट, डबल एएस है, जीसी है ना, या क्रोमेटोग्राफी है, कुछ भी है. और तीसरा है कि डाटा की क्वालिटी जो आप ऑब्टेन करते हो उस इंस्ट्रूमेंट से. तो इन तीनों को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना. राइट. तो देन इन तीनों को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एंड फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, क्योंकि ये डेप्थ क्वेश्चन है. एनालिटिकल मेथड से ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट इट इज अ वेरी क्लासिक एंड वेरी गुड डेप्थ क्वेश्चन जो तीन चीजों को मिला के बनाया गया कि जो आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालिटिकल मेथड में जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और जो डाटा आपको मिलता है, उन तीनों के ऊपर एक एक स्टेटमेंट या दो दो स्टेटमेंट आपको दी गई है. लेट्स हैव अ लुक कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है ना. अभी हम इसको देख लेते हैं सारे को. तो यहाँ पे आपसे पहले कहा गया है कि आपको इसमें से करेक्ट आंसर पिक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, राइट. तो करेक्ट ही स्टेटमेंट चाहिए मुझे सारी की सारी. वन बाय वन करते हैं स्टार्ट गाइस. पहला स्टेटमेंट लेंगे, एक एब्रीविएशन यहाँ यूज हुआ है एमडीएल, मिनिमम डिटेक्शन लिमिट, की using any instrument how much minimum quantity of that sample you can detect, that is called MDL, minimum detection limit. ये ध्यान रखिएगा, minimum detection limit is 3 times of sigma n minus 1, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका, राइट, ऑफ ब्लैंक कंसेंट्रेशन. ब्लैंक क्या होता है गाइस? ब्लैंक होता है जैसे आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं तो वहां पे आप सैंपल के साथ एक ब्लैंक भी करते हैं, उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट मेरा एरर फ्री रहे, राइट, है ना. तो मेरा एरर फ्री रहे, ठीक है. तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपका ब्लैंक कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है, तो मिनिमम डिटेक्शन लिमिट को हम उसका 3 टाइम्स रखते हैं. जो यहाँ पे मेंशन किया गया ना उसको ध्यान से पढ़िएगा. मिनिमम डिटेक्शन लिमिट जो एमडीएल होती है, लेट मी राइट इट क्लियरली सो दैट आप अंडरस्टैंड ठीक से कर पाए. मिनिमम डिटेक्शन लिमिट जो मुझे डिटेक्ट करनी है कि कम से कम कितना डिटेक्ट हो, दैट इज बेसिकली 3 टाइम्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ ब्लैंक कंसेंट्रेशन. तो इतना वेरिएशन वो चाहिए होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कर्व पे भी हम ड्रॉ करते हैं कि ±3 सिग्मा तक का हमें वेरिएशन जनरली दिखता है. पर इसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये स्टेटमेंट अभी ठीक है, अभी डिटेल भी करेंगे इनकी सारों की ना. सेकंड स्टेटमेंट में हम आते हैं. क्या कहता है जी सेकंड? सेकंड कहता है मिनिमम क्वांटिफिकेशन लिमिट, एमक्यूएल, ठीक है, कि कितना कम से कम मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं उस इंस्ट्रूमेंट को लेके. ये दोनों चीजों में फर्क है. एक मिनिमम डिटेक्शन लिमिट है कि इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना डिटेक्ट कर सकता है, और एक कम से कम कितना क्वांटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, एमक्यूएल जिसको आप बोलते हैं. इज 7 to 10 टाइम्स ऑफ ब्लैंक कंसेंट्रेशन. ये भी बिल्कुल ठीक बात है और ये लिखी हुई है मैनुअल्स में, ये चीजें लिखी हुई है. ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये रिसर्च से पता चला है जब डाटा एनालिसिस की गई है, स्टैटिस्टिक्स लगाई गई है कि जो मिनिमम क्वांटिफिकेशन लिमिट होती है वो 7 to 10 टाइम्स होती है, ठीक है, और जो मिनिमम डिटेक्शन लिमिट होती है वो 3 टाइम्स के आसपास होती है. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका एमक्यूएल है दैट इज 7 और 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैंक, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. ठीक है जी, ये हो गया. ये भी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट आई है एकदम यहाँ निकल के आपकी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फिर कहते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट में लोअर कंसंट्रेशन लिमिट ऑफ ए वर्किंग लीनियर रेंज मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफाइंड मिनिमम डिटेक्शन लिमिट. ये कोई रूल नहीं है, ठीक है. इस स्टेटमेंट पे हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा. ये सही नहीं है कि लोअर कंसंट्रेशन लिमिट
कि जो कम से कम हमारी कंसंट्रेशन हो सकती है ऑफ वर्किंग ऑफ ए लीनियर रेंज, कि हाँ मेरा एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे लीनियर रेंज आप कहते हैं ना लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ में, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफाइन मिनिमम डिटेक्शन लिमिट। ये किसने कहा भाई आपसे? ठीक है ना? जरूरी तो नहीं है, उससे छोटा भी हो सकता है, क्या पता वैल्यू, हमने तो नहीं देखा कि कितना वैल्यू है। ठीक है, क्या पता उसमें कंसंट्रेशन हो ही ना, कंसंट्रेशन जीरो हो, तो वैल्यू कम भी हो सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन सारी चीजों पे मैं भी और डिटेल में लाइट पुट ऑन करूंगा और आपको रीजन भी दूंगा उसके। तो सी इज रॉन्ग। देन कम्स डी, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ प्रीसीजन ऑफ द डाटा। ये तो आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स में हम करते हैं एक्स प्लस माइनस सिग्मा। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यूज होता है एज ए प्रीसीजन ऑफ डाटा, कि कितना प्रिसाइज है, कितना क्लोज है टू द नियर ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लिखते हैं ना एक्स प्लस माइनस सिग्मा, तो ये आपका प्रीसीजन बताता है मुझे कि कितना क्लोज टू द एग्जैक्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके है। Then the last one, it says that an analytical data with high precision may or may not be accurate. ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये जरूरी नहीं है, 11th क्लास में लिखा हुआ है एरर्स वाले चैप्टर के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में होता है एरर एंड डायमेंशन में, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो डाटा प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो। प्रिसाइज मतलब होता है कि जो एक्चुअल आपकी रीडिंग है उसके कितने पास है, कितना प्रिसीजन है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का, बट इट इज नॉट दैट कि वो एक्यूरेट है। ठीक है ना? वो तो हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन जब रिपोर्ट होगी तभी पता चलेगा। तो वी कैन नॉट से इट मे बी एक्यूरेट एंड मे नॉट बी एक्यूरेट। प्रिसीजन खाली ये बताता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी लाइन आपकी सही है। इनको सबको अब हम डिटेल में देखेंगे कि वाई दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ए बी डी ई करेक्ट है, सिर्फ सी एक ऐसी लाइन है जहां पे थोड़ी डाउट की सुई लटक रही है या गलत है। अब देख लेते हैं इनको वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन इनका माइक्रो एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आया गाइस, स्टेटमेंट ए, जो आपको कहता है, देखिए अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रीडिंग्स मुझे पता नहीं है ना। मैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए इसको जनरलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की एमडीएल और लिमिटेड डिटेक्शन अलग अलग होती है। ठीक है ना? और उतनी टेक्निकलिटीज में आपको जाना भी नहीं है। ठीक है, ये किसी ने चॉइस से दे दिया। मेरे हिसाब से तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर का होना चाहिए क्वेश्चन, रादर देन इन्वायरमेंट के, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कौन सा ले रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है। अगर या तो आप बोल दे कि एमडीएल इतना है और एमएक्यू इतना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया गया था गाइस, मिनिमम डिटेक्शन लिमिट इज 3 टाइम्स ऑफ द ब्लैंक कंसंट्रेशन। तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट एमडीएल एंड 3 टाइम्स ऑफ द ब्लैंक कंसंट्रेशन जो आती है, तो वेरी एनालिटिकल केमिस्ट्री गाइडेंस डिफाइन दैट मेथड detection limit MDL or limit of detection as a analyte concentration gives the signal about 3 times the standard deviation of the blank noise। तो 3 गुना तक उसका रहता है रेंज, ये देखा गया है, ये फिक्स है। जितने भी कैटलॉग आते हैं वो उसमें लिखा हुआ मिलेगा इसको। सो MDL is the 3 times the blank concentration is an accepted rule of thumb statement। तो ये फिक्स है, ये मैं और आप नहीं कह रहा, ये हर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट कह रहा है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस के लोग बनाते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट ये बात कह रहा है कि कोई भी जो ब्लैंक सैंपल आप उसमें रन करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम डिटेक्शन लिमिट जो है उसकी वो 3 टाइम्स होती है ब्लैंक कंसेंट्रेशन के। कम से कम वो उतना डिटेक्ट कर सकता है, मतलब वो इतना प्रिसाइज है कि अगर ब्लैंक में कुछ भी रीडिंग आती है तो प्लस माइनस 3 टाइम्स के बाद ही वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है। तभी तो इग्नोर कर पा रहा है बैकग्राउंड को, वरना कैसे इग्नोर कर पाएगा? ठीक है, वरना ब्लैंक को कैसे इग्नोर कर पाएगा? ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा? दूसरा स्टेटमेंट जो आपका था, सेकंड वन, द मिनिमम क्वांटिफिकेशन लिमिट MQL, या जिसको लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन कहते हैं, इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन दैट कैन बी मेजर्ड विद द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कॉमनली टेकन अबाउट 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्लैंक। हालांकि इसमें 7 से 10 कहा गया था, पर जनरली हम 10 टाइम्स लेते हैं। सम मेथड्स यूज 6 to 10 टाइम्स, सम मेथड यूज 7 to 10 टाइम, देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज 7 to 10 टाइम्स इज ब्लैंक। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है एकदम। ठीक है, हमने मेंशन किया है इसीलिए कि आपको पता हो, और ये अच्छे क्वेश्चन है। ये आज तक का पहला क्वेश्चन है 2012 के बाद से जो इतनी डेप्थ में इंस्ट्रूमेंटेशन में आया है। मैं आपको बता दूंगा, इस इतनी डेप्थ में इंस्ट्रूमेंटेशन में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था टेक्निक्स के अलावा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा भी कहीं कहीं रिपीट होते देखेंगे, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू स्टेटमेंट नंबर सी।
which we said that it is wrong. Why it is wrong? So we have taken proper care of it कि गलत क्यों था. ठीक है, कि लोअर जो लीनियर रेंज है वर्सेस मिनिमम डिटेक्शन लिमिट, कि दोनों का क्या क्रॉस रिलेशनशिप है. और अब यहाँ पे बोलते हैं कि लोअर कंसेंट्रेशन लिमिट फॉर अ वर्किंग लीनियर रेंज मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफाइंड मिनिमम डिटेक्शन लिमिट. ये किसी लॉग बुक में नहीं लिखा हुआ कि लीनियर रहेगा कि नहीं रहेगा. तो वर्किंग लीनियर रेंज ऑफ द मेथड इज द कंसेंट्रेशन रेंज ओवर विच द कैलिब्रेशन कर्व इज लीनियर. तो जब आप कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं, जैसे लैम्बर्ट बियर्ड लॉ में आपने बनाया, that A is proportional to C, absorbance is proportional to the concentration. तो that is a different thing. जब हम किसी भी स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं वो तो सीधा ही जाएगा, है ना. and the quantitation is reliable. but ये किसने कहा कि वो उससे कम ही होना चाहिए. its lower limit is typically typically, just a minute guys. Yeah, so its lower limit is typically at or above the limit of quantification, which itself is above the minimum detection limit. Thus, the lower concentration limit of the working linear range should be greater than or equal to the LOQ, limit of quantification. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उससे ज्यादा हो, लेस देन और इक्वल टू भी चलेगा, राइट. तो शुड बी, जो आपकी वर्किंग लीनियर रेंज है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, ये इक्वल टू लगाना भी इंपॉर्टेंट होता है, नॉट द मिनिमम डिटेक्शन लिमिट. तो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन के ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, लिमिट ऑफ डिटेक्शन के नहीं. ठीक है, कितना वो क्वांटिफाई कर पा रहा है वो. तो मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफाइन एमडीएल इज इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग, राइट. तो स्टेटमेंट टेकन इज फॉल्स. तो ये ध्यान रखना है आपको, वो मिनिमम डिटेक्शन लिमिट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन से. लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन से वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट व्हिच वाज देयर, which says that relative standard deviation is used as a measure of precision of the data. ये तो आपको पता ही है कि जो मीन डेविएशन आप कैलकुलेट करते थे, ये एक स्टेटमेंट आपके स्टैटिस्टिक्स से मैच करता है, जो मैम ने आपको पढ़ाया भी होगा, सिग्मा बाय म्यू, है ना, पढ़ते थे ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो ये जो आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते थे कि ये आपने लिया इस तरह से जो लेते थे आप, इस पे पहले न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, दैट सिग्मा, जस्ट अ मिनट, ये आप स्टैटिस्टिक्स में आपने खूब पढ़ा है, हमने कराया भी होगा, दैट सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको आप शायद बोला जाता है. तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका दूसरा नाम होता है. तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन RSD is defined as standard deviation upon mean to 100% and is explicitly used for quantifying precision or repeated measurement. तो smaller the relative standard deviation, higher the precision. जितना ये कम होगा उतना ही आप प्रिसाइज है, उतना आपका डेविएशन कम है. तो ये करेक्ट है. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जितना ये कम होगा आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको आप कहते हो, उतना ही आप प्रिसाइज ज्यादा है. That's why it is written relative standard deviation is used as a measure of precision of the data, कि कितना प्रिसाइज है, कितना मेरा एक्यूरेट रीडिंग के पास है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई, हाई प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा प्रिसाइज है रीडिंग वो हमेशा एक्यूरेट ही हो. माइट बी इट इज इनएक्यूरेट. प्रिसीजन तो इंस्ट्रूमेंट का है. ठीक है, अब रीडिंग वो सही है कि गलत है वो बाद की कहानी है. तो हाई प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट. डाटा कैन बी वेरी प्रिसाइज, रिप्रोड्यूसिबल. तो जो प्रिसाइज होगा वो रिप्रोड्यूसिबल है, डेसिमल 1 पॉइंट तक, 2 टाइम तक, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो. सिस्टमैटिकली बायस्ड एंड देयरफॉर इनएक्यूरेट, हेंस analytical data with high precision may or may not be accurate, so it is correct. So hence, after arguing about these statements, we find out that only statement C which is given here was incorrect and rest of the statement was correct. So A, B, D, E all are correct except C. तो C को हम कह सकते हैं कि भाई C ही बस खाली एक गलत था. ठीक है, वो भी MDL के बजाय अगर ये MQL कर देते, मिनिमम क्वांटिफिकेशन लिमिट, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कर देते तो ये करेक्ट हो जाता, बट ये नहीं किया गया.
तो that's why the correct answer here is basically option number 3 for question 55. Is it clear to each and everyone? जल्दी जल्दी respond करेंगे guys. My priority is to get you the essence of each and every detail which have been put by institution, right? And you should understand each and everything in a depth manner so that कि जब आप solution को digest करें, और हमारा यही एक फंडा रहेगा कि जितना जितना आप हम करते जा रहे हैं उतना उतने क्वेश्चन आप डाइजेस्ट करते जाइए, सोल्यूशन से पढ़ते जाइए, अच्छे से उनको समझते जाइए, तो हमारा एजेंडा ऑफ मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट फॉर द सेशन इज फुलफिल्ड। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। लोग कहते हैं जी एक साथ पढ़े, ऐसे पढ़े। मैंने पहले भी बोला कि 10-12 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है जिससे आपको फील ना हो, राइट? तो वी वुड लाइक टू पुट दैट थिंग कि बच्चे को फील ना हो, स्टूडेंट को फील ना हो, और वो उसको डाइजेस्ट कर पाए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से दोबारा ट्रिगर कर सकते हैं फॉर श्योर, राइट? As far as the NTA, the pattern is concerned and the things are concerned, they can relate things, right? तो हो सकता है कुछ चीजें आपको दिखे, right? और ये सारों के साथ ही है, 2020 से लेके 20205 तक, 25 तक, है ना? Now let's move to question number 56, which is the next question. Question number 56. ये तो आसान क्वेश्चन है गाइज, ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन है। वी ऑलरेडी डिस्कस इट इन आफ्टर द यूनिट एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा, ठीक है? और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले भी ये चीजें आई हुई हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट देम। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको गलत चीज पिक करनी है। क्या है ये जो लिखे होते हैं ना, इनकरेक्ट, which of the following is not correct, तो ये बड़ा ध्यान देना है आपको ना एग्जाम में। लोग कई बार यही नहीं पढ़ते, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, वो बस खाली आगे चल देते हैं। तो रीडिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कहते हैं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कैन ओनली एक्सर्ट डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग। भैया ये आपने बहुत गलत स्टेटमेंट कह दिया। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल डायरेक्ट भी करते हैं और इनडायरेक्ट भी करते हैं, अभी हम समझेंगे, दोनों ही होती है। तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल डायरेक्ट भी करते हैं एग्जर्ट, और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत गाइस, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगले पे चलते हैं हम लोग, अगले स्टेटमेंट पे। अगला स्टेटमेंट कहता है कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सही बात है कि अब देखिए इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन निकलेंगे। कंप्लीट कंबस्शन होगा तो भी तो CO2 निकलेगी, अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तब किसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी? तब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये करेक्ट है, चाहे आप कंप्लीट करिए चाहे इनकम्प्लीट करिए। भैया फॉसिल फ्यूल तो है ही ग्लोबल वार्मिंग कराने के लिए। कोल, पेट्रोलियम, डीजल जितना भी आप चलाएंगे उससे ग्लोबल वार्मिंग तो होनी है, नोबडी कैन डिनाई दैट। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज अपोज बाय ट्रेस गैसेस डिराइव्ड फ्रॉम सल्फर कंपाउंड। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, एकदम बेहतरीन स्टेटमेंट। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है जैसे हमारी CO2 है ना, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, मीथेन है, ठीक है, ये तो क्या काज करते हैं गाइस? ग्लोबल वार्मिंग। ये क्यों अच्छा स्टेटमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग इन्होंने कॉज किया। दूसरी तरफ सल्फर के जो कंपाउंड है SO2, ये आपको पता है रिफ्लेक्टिंग टाइप के एरोजोल बनाते हैं और ग्लोबल कूलिंग कॉज करते हैं। तो स्टेटमेंट अपने आप ही करेक्ट हो गया। सल्फर के जो कंपाउंड है SO2, SO3, ये क्योंकि सल्फेटेड एरोजोल बनाते हैं विच इज हैविंग द रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग एस्पेक्ट एंड नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, तो ये कूलिंग कराएंगे। नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग है, और इनकी है पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, तो ये वार्मिंग कराएंगे। और यही स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ लिखा है दैट एक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज अपोज बाय ट्रेस गैसेस डिराइव्ड फ्रॉम सल्फर कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। देयर हैज बीन इंस्टेंस ऑफ पोलर एम्प्लीफिकेशन ऑफ वार्मिंग। बिल्कुल सही बात है, आपको तो ये पता ही होगा कि जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो देयर हैज बीन इंस्टेंस ऑफ पोलर एम्प्लीफिकेशन, राइट, ऑफ वार्मिंग, या पोल वाइज इसका इंपैक्ट बढ़ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं इसका, है ना। ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन तो मैंने कर दिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम और कर लेते हैं विद ऑल द स्टेटमेंट, सो दैट once you digest the solution you have the things with you.
सबसे पहले स्टेटमेंट का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, विच सेज दैट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कैन ओनली एक्सर्ट डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग। भाई इनडायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? इनडायरेक्ट भी करते हैं, और ये लिखा भी हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, गिलबर्ट मास्टर में भी है, बुकलेट में भी मेंशन किया हुआ है। द फर्स्ट स्टेटमेंट, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कैन ओनली एक्सर्ट डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग, इज इनकरेक्ट. Atmospheric particle, also known as aerosol, can influence Earth's climate in several ways, not just directly. They can have both direct and indirect effect on radiative forcing. मैंने बताया भी था, there are aerosols which have positive radiative forcing, there are aerosols which have negative radiative forcing, and both kind of effect they do. अब जैसे हम डायरेक्ट की बात देखते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है? एरोसोल्स डायरेक्टली स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या तो एब्जॉर्ब करेंगे या स्कैटर करेंगे. लाइट कलर एरोसोल लाइक सल्फेट, ये रिफ्लेक्ट करेंगे सनलाइट को इनटू द स्पेस एंड कॉज कूलिंग इफेक्ट, जो स्टेटमेंट नंबर 3 में आपसे पूछा है, ठीक है? जो स्टेटमेंट नंबर 3 में आपसे पूछा है, सल्फर के कंपाउंड वाला. डार्क कलर एरोसोल लाइक ब्लैक कार्बन सूट, दे एब्जॉर्ब सनलाइट एंड वार्म एटमॉस्फेयर, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है. डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रेडिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग. ये तो हुई डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग. दूसरी गाइस एक आती है इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग, उसको भी देख लेते हैं. इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट इफेक्ट. इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से. Aerosols also have indirect effect by acting as cloud condensation nuclei, CCN, जिससे क्लाउड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. These particles are essential for the formation of cloud droplets by chasing the properties of cloud, such as their albedo, reflectivity, and lifetime. Aerosol can alter Earth's energy balance. For example, an increase in aerosol can lead to the formation of more but smaller cloud droplets, making the clouds brighter and more reflective, while the cools the planet, the known as aerosol cloud interaction of the indirect effect. तो भैया एरोजोल पार्टिकल के डायरेक्ट भी इफेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं. कोई ये ना कहे कि डायरेक्ट होते हैं सिर्फ. इस वजह से इस स्टेटमेंट को हमने गलत कह दिया, क्योंकि ये सिर्फ कह रहा है कि जी डायरेक्ट है. ये तो हुआ पहला पार्ट. सेकंड व्हाट इट सेज, सेकंड सेज अबाउट कंप्लीट कंबस्शन. तो ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है गाइस? लेट्स हैव अ लुक. कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में आपका कोल, पेट्रोलियम, डीजल आएगा. Contribute to global warming. This is true, while incomplete combustion produce more pollutant like carbon monoxide, soot, and complete combustion of the fossil fuel primarily produce CO2, a major greenhouse gas. And the chemical reactions for the complete combustion of a simple hydrocarbon is like methane के लिए हमने balance reaction लिख दिया यहाँ पे. Methane getting burn in oxygen give rise to CO2 and water. ये मैंने बताया भी था, आपको क्लास में पढ़ाया है. Every hydrocarbon which is burned in the presence of oxygen will definitely leads the product CO2 and water. The CO2 trap the heat in atmosphere leading to global warming. Actions of third statement. तो ये स्टेटमेंट सेकंड आपका ठीक हो गया. उसके बाद स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि क्यों गलत है और सही है क्यों. तो एक्शंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज अपोज बाय ट्रेस गैसेज डिराइव्ड फ्रॉम सल्फर. तो मैंने बताया था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Sulfur compound, particularly SO2 produced from the burning of fossil fuels, are a significant source of sulfated aerosol. As mentioned above, the aerosol reflect the sunlight back into the space, causing the cooling effect. तो इनकी होती है कूलिंग, इसलिए, और ये वार्मिंग को अपोज करते हैं. सो द पार्शियल ऑफसेट द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. दिस इज व्हाई सम रीजन एक्सपीरियंस अ टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट आफ्टर मेजर वॉल्केनिक इरप्शन व्हिच रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ SO2, जैसा माउंट पिनाटाबो में हुआ था आपका फिलीपींस में, राइट? तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें कि कहां से क्रॉस कोरिलेट कर रहा है क्वेश्चन ना. तो चीजें कई बार डेप्थ में पूछ ली जाती है. ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है. अगले स्टेटमेंट में चलते हैं गाइस, व्हिच इज द लास्ट स्टेटमेंट, राइट? तो पोलर एम्प्लीफिकेशन के बारे में जो पूछा गया आपसे, तो इट सेज दैट देयर हैज बीन इंस्टेंस ऑफ पोलर एम्प्लीफिकेशन ऑफ वार्मिंग. ये क्या मीनिंग है भाई पोलर एम्प्लीफिकेशन का? This is absolutely correct. Polar amplification is the phenomena when the polar region, the Arctic and Antarctic, are warming at a faster rate than the rest of the planet. तो इसी को हम बोलते हैं polar amplification, कि उनको impact ज्यादा हो रहा है global warming का as compared to other part. And this is largely due to the feedback loop. For example, as the Arctic sea ice and snow cover melt, the darker ocean water and land absorb more solar radiation, leading to the further warming and more melting. A positive feedback loop, this phenomena is a well documented aspect of climate change. तो ये जो आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप है, ये और मेल्टिंग को बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है. तो आफ्टर द
core discussion on this question number 56, we reached to a conclusion that only statement first was wrong, so the correct answer here is 1. Anyone having any doubt in question number 56? जल्दी बताइए फटाफट से. ये एक्टिविटी अच्छे से करने की है गाइस. वैसे तो सारी ही सेशन अच्छे से करने की है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके टोन को सेट करती है फॉर द ओवरऑल एग्जाम, राइट? कि क्या हमने पढ़ा, कैसे कनेक्ट करना है, और जून का पेपर लगभग कहाँ था, सो दैट 6 मंथ बाद का पेपर कहाँ लैंड करने वाला है, किन किन एरियाज पे ज्यादा एम्फेसिस है, कम है. बाकी तो रूटीन ही रहेगा पेपर, ठीक है, तो कोई उसमें इशू नहीं है ना. और आज हमारे पास एक गुड न्यूज आ रही है. देयर वाज अ कैंडिडेट, her name was Divya from Divya was from DU. She got selected into IIT Delhi. In CIDT she also gets selected into NIRI Nagpur and she also gets selected in IISER Mohali. 3 जगह के इंटरव्यू लड़की ने क्रैक कर लिए. तो these kind of cases motivate us for the more hard work कि हम लोग ठीक ट्रैक पे हैं, और उसके सारे प्रपोजल और सारी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम लोगों ने करवाई है, ठीक है, इन लास्ट 2 मंथ. तो मुझे लगता है कि समवेयर वी आर स्ट्राइकिंग राइट, ठीक है. एंड JRF शी ऑलरेडी क्वालिफाइड इन दिस लास्ट एग्जाम. तो होपफुली आपके इंटरव्यूज फिर एक फॉर्मेलिटी रह जाते हैं, वो भी अगर आप गाइडेड मैनर में करोगे. एंड फाइनली शी इज ऑप्टिंग टू IIT दिल्ली. आई गेस शी हैज सबमिटेड द फीस फॉर IIT दिल्ली. सो दिस इज अ लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट एंड, राइट. चलिए हम लोग आगे चलते. लेट्स टॉक अबाउट, yeah, this question is done. So next question, question number 57, again a question on global climate change. मैंने बताया ना कि 11 12 17 क्वेश्चन तक भी टच कर गया एयर पोल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. तो इस यूनिट को आप लाइटली ना लें, इस यूनिट पे आप पूरा एम्फेसिस करें. हमने भी 40 घंटे के आसपास डिवोट करे हैं. उसका कुछ रीजन है कि कहाँ तक डेप्थ टच हो रही है. तो 40 घंटे अगर किसी यूनिट पे लगे हैं ना गाइस, तो समझना आप कि उस यूनिट में एक्चुअली में कुछ पोटेंशियल है. इट कैन डू द बिगर वर्जन्स एंड द ब्लास्ट एट पिक, right? So let's talk about to the next question, which is question number 57, which says that which of the following are likely consequences of global climate change. Simple question है, common understanding भी हो तो भी इंसान इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता था, बट कंडीशन अप्लाइड कि आपने क्या क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे ना. कह रहा है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो. लेट्स डू द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस क्वेश्चन. तो कहता है इट विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ ओशियन. ये रिएक्शन मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ. ओशियन एसिडिफिकेशन बुकलेट में भी लिखी हुई है, और इस रिएक्शन को लिख लिख के इतना मैंने पढ़ाया है दैट CO2 गेटिंग डिसॉल्व इनटू द वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड which is H2CO3, right? And it H2CO3 give rise to H plus and HCO3 minus. Further this HCO3 minus will also give H plus and CO3 2 minus. ये मैनर में आपकी एसिडिटी ऑफ ओशियन बढ़ती है एज द ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई गाइस, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये स्टेटमेंट में कोई डाउट है, ठीक है. चलिए अच्छी बात है. अगली स्टेटमेंट में चलते हैं गाइस. व्हाट द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज? द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द लेबाइल पूल ऑफ कार्बन इन द सॉइल विल मोबिलाइज मच फास्टर. लेबाइल होता है जो आपका उड़ के जा सकता है, ठीक है. तो जो लेबाइल पूल है कार्बन का सॉइल के अंदर, वो बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है ना. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. सो लेबाइल पूल जो है वो फास्ट मूव करेगा फॉर श्योर 110%, ठीक है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है ना. ये जो लेबाइल पूल होता है वो ज्यादा फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू फिक्स पूल के. तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया. वी विल डू अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल दीज once we have the primary investigation. Then coming next, it may accelerate the soil salinization. soil की salinity भी बढ़ती है जैसे जैसे आपका global climate change बढ़ता है. ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी,
राइट। ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है कि सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है साहब, सॉइल सैलिनाइजेशन बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इट एक्सेबरेट द इंसिडेंट ऑफ कोरल ब्लीचिंग। ये तो सबको पता ही है, तो बुकलेट में भी हमने लिखवाया हुआ है कि कोरल ब्लीचिंग भी एक इफेक्ट होता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग जिसमें कोरल्स का जो कलर है आपका उड़ जाता है। लास्ट स्टेटमेंट, ये जिनको ना भी पता हो कि एर्गोनाइट भी एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैटेगरी का है, तो एर्गोनाइट विल बी मोर लाइकली टू डिसॉल्व इनटू सी वाटर। अब आप ये कहेंगे कि एर्गोनाइट हमें नहीं पता था। भाई एर्गोनाइट जो है मिनरल एंड रॉक से कनेक्टिविटी आपको कही गई है करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये चीज यहाँ पे ऐसे निकल के आई है कि एर्गोनाइट जो है बच्चे को मिनरल एंड रॉक पता है कि नहीं है, ठीक है। अगर मिनरल एंड रॉक नहीं पता है तो भैया फिर तो गड़बड़ है मामला, ठीक है। कि एर्गोनाइट भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये स्टेटमेंट आपकी एलोडो में लिखी है, हमने बताई है बहुत पहले कि एर्गोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म होता है। तो जितनी ज्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ेगी ये डिजोल्व ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा डिसोल्यूशन इसका बढ़ेगा इन एसिडिक कंडीशन। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। तो एर्गोनाइट इज ऑल्सो देयर, कीप दैट इन माइंड कि जो आपका एर्गोनाइट है वो भी वहां पे है। तो ये सारे स्टेटमेंट ठीक है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में इनको थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं गाइस, व्हाई द स्टेटमेंट्स वाज सो मच एंड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड। क्योंकि ये टू वे जो हमने अब सिस्टम बनाया है ना, ये फुल प्रूफ स्टेटमेंट सिस्टम है। इस पे आपको जरूर एडवांटेज यहाँ जनरेट होगा। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, ए बी सी डी ई ऑल आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप बोलते हैं। लेट्स हैव अ डिटेल व्यू, क्या कहते हैं डिटेल व्यू, क्योंकि हमने सारा सजाया हुआ है आपके लिए, तो डिटेल व्यू के लिए ही ये सेशंस हैं कि डिटेल व्यू को आपको डाइजेस्ट करना है कि क्यों ऐसा होता है साहब, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो आपको हम दिख रहा है या मिल रहा है आप बिलीव करिए नोबडी एल्स इन इंडिया राइट इट। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, आप चेक कर सकते हैं 2025 से लेके 2010 तक का डाटा मैं आपको दे रहा हूं, 15 साल का। तो वी कैन कोरिलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये काफी इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है आपके लिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम एंड ऑल द एग्जाम्स व्हिच आर हैपनिंग पैरेलली, चाहे वो पीएचडी के हैं चाहे अदर एग्जाम्स भी हैं। Global climate change is a complex phenomena with a wide range of interconnected effects on Earth system, and hence it's a breakdown that why its statement is consequent. तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको डाइसेक्ट करके दे ही दिया है कि भाई क्यों इनका इम्पैक्ट ऐसा है, वही स्टेटमेंट के गुणगान ये करेंगे। तो इट विल इंक्रीज द एसिडिटी, यस दिस इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस इन एटमॉस्फेरिक CO2। तो CO2 डिसॉल्व होगी आपकी वाटर के अंदर, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। द ओशियन एब्जॉर्ब्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। When CO2 dissolves in seawater, it forms carbonic acid and which lowers the pH, making them more acidic, and the process is known as ocean acidification. So we agree. Right statement. Right. Second statement. They say about the labile pool, जो आपका कार्बन जो जा सकता है, तो labile pool of carbon in soil will mobilize much faster. ये भी बिल्कुल सही बात है। Labile pool of carbon refers to the easily decomposable organic carbon. ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि labile pool होता क्या है। जो इजीली डिकम्पोज हो सके ऐसा ऑर्गेनिक कार्बन लेबाइल पूल कहलाता है, कि ज्यादा लेबाइल है, इजीली ये डिकम्पोज हो सकता है, राइट। एज ग्लोबल टेम्परेचर राइज माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द सॉइल इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा माइक्रोबियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी सॉइल में, एंड दीज माइक्रोब ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर मोर क्विकली रिलीजिंग CO2 back into the atmosphere, and this create a positive feedback loop. Warmer temperature lead to more CO2 release from the soil, which is turns cause the further warming. तो ये बड़ा अच्छा क्रॉस कोरिलेशन है कि क्यों ऐसा होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका गया जी करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहती है चीजें। थर्ड कहते हैं इट में एक्सेलरेट द सॉइल सैलिनाइजेशन। सलाइन सॉइल आपने पढ़ी है, सॉइल में सलाइन सॉइल में आपके सॉल्ट ज्यादा होते हैं, EC भी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, ठीक है जी, है ना। तो ये क्या लॉजिक है, इट में एक्सेलरेट द सॉइल सैलिनाइजेशन। सॉइल सैलिनाइजेशन the increase of salt content into the soil, and climate change can accelerate the process in several ways, particularly
in arid and semi-arid region, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है. High temperature lead to increased evaporation to form the soil surface, drawing salty water up from below and में कि ऊसर सॉइल कैसे बनती है, व्हाइट कलर का क्रस्ट रह जाता है. ठीक है, तो हम उसको कैसे देखते हैं कि जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगा. एडिशनली राइजिंग सी लेवल कैन कॉज सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू द कोस्टल एक्वीफर. ये भी मैंने बताया आपको, ये भी हमने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा कैसे सॉल्ट वाटर जो है इंट्रूड करता है प्योर एक्वीफर में. कंटामिनेटिंग फ्रेश वाटर सोर्स यूज फॉर इरिगेशन एंड लीडिंग टू सॉल्ट बिल्डिंग अप इनटू द सॉइल. तो दीज आर द फिनोमेना व्हिच इज सपोर्टिंग द इंक्रीज इन द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल विद क्लाइमेट चेंज. तो ये भी करेक्ट आपका. आगे चलते हैं गाइस. स्टेटमेंट नंबर डी, इट एक्सरेट द इंसिडेंट ऑफ कोरल ब्लीचिंग. ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है जूसेंथेली और कोरल का केस. तो कोरल ब्लीचिंग को ये बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है. कोरल bleaching is a major threat to coral reefs worldwide, and it occurs when coral expels the symbiotic algae living in their tissue. और ग्रीन कलर का सारा क्लोरोफिल उनका निकल जाता है. मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, causing them to turn white. And the primary cause of the mass coral bleaching event is rising sea temperature. सबसे मेन रीजन तो यही है, acidification of sea भी है. Warm water stress the coral, leading to the breakdown of their symbiotic relationship with the algae. तो उसमें जो एक कोरल है और एक जूजेंथेली है जो एल्गल पार्ट है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एर्गोनाइट विल बी मोर लाइकली टू डिसॉल्व इनटू सी वाटर. ठीक है, ये ज्यादा डिसॉल्व होता है. उसका रीजन मैं आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ गाइस, क्यों है. एर्गोनाइट इज द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैंने आपको बताया. और जब आप पढ़ेंगे गिलबर्ट मास्टर, वहां क्लियरली मेंशन है कि जैसे जैसे आपकी एसिडिटी ऑफ सी वाटर बढ़ती है, वैसे वैसे डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ज्यादा डिसॉल्व होते हैं. वहीं से कोरिलेट किया गया. एर्गोनाइट भले ही लोगों को ना पता हो, तो एर्गोनाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which is key building block for shells and skeleton and many marine organisms including coral, molluscs and some plankton. As the ocean become more acidic due to the absorbing CO2, the concentration of carbonate ion decrease, and this makes it more difficult for marine organisms to form their calcium carbonate structure and can even cause existing structures as argonite to dissolve. तो ये dissolve ज़्यादा होने लग जाता है as a result of climate change, right? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ. और इसीलिए डॉक्यूमेंट का जो है कंपाइलेशन होता है कि आप अच्छे से लॉजिक्स को डाइजेस्ट कर सके. वरना ऐसे एबीसीडी तो सब लिखते हैं, पर लॉजिक लिखना जरूरी है. एंड हेंस द करेक्ट आंसर हियर इज द फोर्थ वन, राइट, व्हिच इज ए बी सी डी ई. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 57 इज फोर्थ. इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी से बताएंगे गाइस. एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? क्विकली, किसी को यहाँ पे कोई डाउट दिख रहा हो तो जल्दी से गाइस, क्विकली. एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 57? चलिए जी, आज शायद मैं इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बिकॉज आई हैव टू कैच अ मीटिंग एट 7:30 and the next class will follow as per the timetable given to you people. But this is a surety that we will not see any sort of delay in this process, and you will be getting this within this month, all these questions. तो कुछ इसमें issue होगा नहीं, काफी टाइम आपको मिलेगा. बट आपसे एक रिक्वेस्ट है that whatever questions we are discussing, you have the document given by the institute in well compiled form. It's a request to digest and read out the solution very well, right, and see these questions, what is the logic. At least कम से कम जितने डिस्कस होते हैं पर डिस्कशन में, उतने तो आपको करने हैं. ठीक है, आई नो यू पीपल आर लोडेड ऑलरेडी विद अ lot of stuff and lot of revision, but you still have a बहुत कम है, अभी decent amount of time है, and we are only heading towards the exam.
तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये जरूर है कि आपको इसको पढ़ना जरूर है, साथ साथ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, यू विल गेट द एडवांटेज। अब बाद में करने का तो फिर कोई सिस्टम नहीं है, बाद में आधी चीजें आपके माइंड में रहे, उस स्टेट में ना रहे, तो कंसिडर इट टू बी लाइक अ क्लास, ये क्लास का ही पार्ट है, मुझे आज ये पढ़ लेना है। With this, I will stop here. Thank you very much for your patience. Thanks for being here. See you guys in the next class with more questions, right? And more informations. So next class में हम discussion का जो session होगा वो अलग रहेगा और क्लास का अलग रहेगा, बट डू बिकम द पार्ट ऑफ डिस्कशन। क्लास का तो बहुत से लोग आपके क्लाउड वाले भी हैं, मैक्सिमम क्लाउड वाले ही हैं जो रेगुलरली नहीं बैठते, तो उसका मैं कुछ नहीं उस पर क्रॉस आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, but I can request you people for the discussion part. Take care. Good night. Next class will be by Manisha ma'am. She will be winding up the जो rock वाला एक 30 minutes का session बचा है, and she will start with the other stuff. Take care. Good night.